سینے میں یاد محمد، میرے سینے میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے سینے میں یاد محمد۔ مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہوں میرے جب محمد، ناخدا ہوں میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے سینے میں یاد محمد۔ دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، یاد سلطان کے طیبہ کے صدقے دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے سینے میں یاد محمد۔ پرویز بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ہڈن ٹیلنٹ مجھے پتا تھا، آپ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول سننے کے اور پڑھنے کے شوقین ہیں، لیکن اس روحانیت سے پڑھتے ہیں، یہ تو جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، مزہ آ گیا۔ آپ کی حسن نظر ہے، آپ سننے والے اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ حسن بھائی ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کا تعلق ثنا خوانی سے ذکر مصطفیٰ ماشاءاللہ آپ ایک سالوں سے کرتے آئے ہیں۔ اب دیکھیں ذکر مصطفیٰ جو کرتا ہے، جو ثنا خوانی کرتا ہے، اس کے کوئی مارکس تو نہیں ہوتے، وہ تو دل سے کری جاتی ہے، وہ تو عقیدت سے کری جاتی ہے، وہ تو محبت سے کری جاتی ہے، وہ تو انسیت سے کری جاتی ہے نا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، اس میں تو مارکس ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اگر ان کو مارکس دینے ہو تو آپ کوئی ہے اس کا کوئی؟ میں تو پرویز بھائی کے لیے کہوں گا کہ مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، واہ، زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے، اللہ کیا بات ہے، عقیدت سے آپ نے حضور کی ثنا خوانی کی تو اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کس کا پڑھنا وہ قبول فرماتے ہیں، بے شک۔ اور خالصاً جو فی زمانہ ماحول چل رہا ہے تو ہم تو پس پردہ چلے گئے کہ ہمارے لوگ تاثرات ہی چینج ہو گئے، لیکن جو یہ پڑھتے ہیں تو یہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھ لیں، اللہ کریم آپ کو اس کی دارین خوشی عطا فرمائے، اور اس ذکر مصطفیٰ کی برکات آپ کو نسلوں کو عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور مجھے دنیاوی نمبر لینا بھی نہیں ہے، اچھا واہ، مجھے جب دنیا کے نمبر ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی نمبر ہو نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام پیچھے بھی کھڑا رہوں گا تو میں سمجھوں گا میری زندگی سفل ہو گئی۔ تو دنیاوی نمبر سے کیا کچھ ہوتا ہے، کیا بات ہے، اصل تو آخرت سے شروع ہوگا ماحول، جب مرنے کے بعد انسان کی زندگی شروع ہوگی۔ یہ 60-70 سال کی عمر میں بہت سارے لوگ تک و دو کرتے رہتے ہیں، زندگی کے مصائب میں پھنسے رہتے ہیں، حلال حرام کا پہچان نہیں ہوتا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ تھوڑی سی زندگی ہے، بے شک، اصل زندگی اوپر ہے، جس کے لیے یہ ہے کما لیں، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، لوٹ لیں جتنا لوٹ سکتے ہیں۔ بس بدقسمتی ہم دنیاوی دولت کو جمع کرنے کے وہ گئے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ علامہ صاحب کیونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی جاری ہے اور ثنا خوانی بھی ہو رہی ہے، اور پرویز بھائی نے اتنا عشق رسول جو ہے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ جو کہنے سے تو زبان سے کہا جاتا ہے میں عاشق رسول ہوں، ہم اپنا اوڑھنا پہننا بھی ایسا کر لیتے ہیں کہ ہمیں دیکھے کوئی دور سے بھی، لیکن دل سے کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہے پکا عاشق رسول؟ اس کی کوئی مشاہبت ہوتی ہے کوئی کہ؟ جی بالکل، دیکھیں انسان کی فیلنگ بتاتی ہے اور حقیقی تصویر کے مانند ہوتی ہے کہ
اگر وہ ذکر مصطفیٰ کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، بے شک تو اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس وقت اس کو دیکھ کر بندہ خود ہی محسوس کرتا ہے کہ ہاں واقعی جو ہے نا یہ حضور کا سچا عاشق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور چاہے وہ کہیں بھی تقریب میں ہو، سفر میں ہے، گھر میں ہے، کہیں بھی ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آ جائے سامنے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کسی تقریب کے اندر ہوں یا کسی مہمان کے ساتھ ہوں، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے، خود بخود بدل جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں عشق کی جو حرارت ہے اس کی اپنی ایک الگ ہی مثال ہوتی ہے جو کہ انسان کے اندر سے باقاعدہ وہ ایک تصویر کے مانند نظر آتا ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ابھی دیکھیں ہمارے معزز مہمان نے بڑی اچھی بات کی کہ اصل تو سفر مرنے کے بعد ہے۔ دیکھیں انسان اپنی زندگی کو اتنا حسین بنا دے، بہت اچھی بات کی کہ ہمیں حلال حرام کی تمیز ہونی چاہیے، بے شک بہت زیادہ، ہمیں جو ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے دیکھیں ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور سب سے بنیادی جو چیز ہے نا کاشان عالم صاحب وہ ہے انسانیت۔ جس انسان کے اندر انسانیت ہے سمجھ لو وہ آگے بھی بڑھے گا، کامیابیوں سے ہمکنار بھی ہوگا، سب سے بڑا یہ ہماری بنیاد ہے بے شک انسانیت۔ اور جس انسان کے ہاں انسانیت ہی نہ ہو پھر آگے بیکار ہے اس سے بات کرنا۔ ایسی بات ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ ملک 29واں پارہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی اور موت کے امتحان کے اندر ڈالا ہے، بے شک آپ کو زندگی دے دی اور اب زندگی کے بعد آپ کو لوٹ کر پھر اللہ کی طرف جانا ہے، موت طاری ہوگی۔ اب یہ جو زندگی ملی ہے یہی تو اصل ہماری کمزوری ہے، ہم اس کا مطلب ہی نہیں سمجھ پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس زندگی اس لیے ہمیں ملی، دنیا کے اندر ہم آئے، یہاں کھیل تماشا دنیا کے ماحول سے انجوائے کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے اور بس وقت گزار کے چلے جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس کے بعد موت آئے گی اور پھر وہاں حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا کہ آپ کو زندگی اور موت دی تھی، اب اس میں آپ نے کیا کیا، مقصد حیات ہمارا ہے کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹھیک ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا الا لیعبدون، صرف اور صرف وہ اللہ کی عبادت کرے۔ بے شک جب اللہ کی عبادت کرے گا تو وہاں بہت سارے چشمے جاری ہوتے ہیں جو کہ انسان دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، ہمارے نوجوان ثنا خواں پرویز بھائی، یہ مزمل بھائی، ابھی ہم جب آن ایئر نہیں تھے ایک بڑا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے، جی جی جی، تو میں ان سے ایک دفعہ درخواست کروں گا وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ جو ہو چکا ہے اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں، بے شک ہے نا؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ تیری عطا سے حضور جانتے ہیں، تو وہ والا اگر کلام ہو جائے مزمل بھائی، اس کی 2 لائن۔ انشاءاللہ وہ کلام میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ نیتوں کی بات ہو رہی تھی تو میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جی بالکل پیش۔ فرماتے ہیں ہاں یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، کہ سرکار سے مانگو تو
सही आल का सदका सरकार से मांगो तो सही आल का सदका मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा, मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। और शेर समात कीजिए कि ये नाम मोहम्मद है कि रहमत का समंदर, ये नाम मोहम्मद है कि रहमत का समंदर, अरे बहता है, ये बहता है, ये बहता ही रहेगा, बहता है, ये बहता है, ये बहता ही रहेगा। और क्या लुफ्त गो सरकार मुझे हाशरे में कह दे, क्या लुफ्त गो सरकार मुझे हाशरे में कह दे, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। क्या कह रहे हैं मुज़म्मिल भाई, सुभान अल्लाह, आपने सुभान मेरे अल्लाह। कलाम की जो फरमाइश तो पूरी नहीं की, लेकिन ये कलाम ने तो जो है दिल मदीना मदीना कर दिया है। हसन भाई जबरदस्त, खूबसूरत कलाम, और जिस अंदाज से पेश किया है मुज़म्मिल भाई ने, परवेज़ भाई भी जो है पहुंच गए थे वहीं, मैं देख रहा था। परवेज़ भाई, क्योंकि आप जो है, आपका काम है हमेशा से लोगों को हंसाना, मोहब्बतें बांटना, खुशियाँ बांटना, लेकिन ज़ाहिर है आप भी तो एक अशरफुल मखलूक़ात है, दुख ज़िंदगी में आते होंगे, परेशानी ज़िंदगी में आते होगी, तो कभी कभी ऐसा लम्हा हुआ कि ख़ुद दिल से और दिमाग से परेशान है, लेकिन जब परफॉर्म करने गए तो लोगों में वैसे ही खुशियाँ बांट रहे हैं, और वो अपनी परेशानी को एक तरफ करके, क्योंकि आपको जो लोग देखने आते हैं वो एक एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि यार आज हम अपने गम को बुला के थोड़ी देर हंसेंगे, बोलेंगे, तो आपको उनको भी तो मद्देनज़र रखना है। ये मेरा पेशा है, ये काम है मेरा, तो ये पैशन भी है, और अल्लाह ताला ने एक रिस्क का सिलसिला रख दिया अगर, तो हुआ ऐसा। मैं कमिटमेंट था, बहुत बड़ा शो था, मेरी वालदा के इंतकाल को 2 ही दिन गुजरे थे, अभी स्वयं भी नहीं हुआ था। पर एक सेकंड में आपकी इस बात को रोकूंगा, एक लाइव कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काशान, क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं, कौन और कहाँ से? माशाअल्लाह, अकीदत रमज़ान हमारे घर में जो बिल्कुल चल रहा होता है सहरी के दरमियान, और हमारे घरों में रौनक के बिखेर रहा होता है। जी जी बहुत शुक्रिया। देखते हैं आप अकीदत रमज़ान की सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसकी सहरी ट्रांसमिशन भी देखता हूँ, बल्कि मैं क्या, मेरा पूरा घर देखता है, और इफ्तार की ट्रांसमिशन भी जो है हम बिल्कुल बेशक देखते हैं। मेरी 2 रिक्वेस्ट होगी आपसे, अगर आप मेरी दरख्वास्त को मंजूर करते तो। आपने MCR में पैसे जमा करा दिए दोनों रिक्वेस्ट के? मेरा नाम है अब्दुल रहमान, और मैं मुजफ्फराबाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, अरे माशाल्लाह, इतनी दूर से। परवेज भाई मौजूद है, परवेज भाई से एक सवाल होगा, और दुआ के अंदर मैं आपको बोलूंगा कि आज दुआ आप करें तो कश्मीर के लिए जरूर आप दुआ करना कि अल्लाह हमारे हक में जो बेहतर है वो हमें अता फरमाए। आमीन आमीन। कश्मीर के लिए तो लाजमी दुआ होगी, और वैसे ही हमारे लिए बहुत हमारी दुआओं में शामिल होता है। सवाल मेरा परवेज भाई से ये कि क्योंकि वो एक कॉमेडियन है, वो लोगों के चेहरों पे हंसी
बिखेरते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है उनके साथ कि वो दिल से बड़े अफसरदा हो, या उनको कोई किसी भी चीज की, क्योंकि इंसान है तो इंसान को टेंशन हो सकती है किसी भी चीज की, और वो कोई शो कर रहे हो और वो फिर भी हंस रहे हो, तो उस वक्त अपनी कैफियत को वो कैसे बर्दाश्त करते हैं? वही मैं सुनाने जा रहा था, आपकी कॉल आपने ये बात सुनते हुए कॉल करी है, और मेरा सवाल भी ये था। बहुत शुक्रिया जनाब आपका कॉल करने का। इसी जवाब पे आते हैं, और क्योंकि कॉल से पहले मेरा सवाल यही था, तो शायद उसी सवाल से इन्होंने कॉल उठा ली और वही सवाल रिपीट कर दिया। बहरहाल मोहब्बत है आपकी कॉल करने का। फरीद भाई सवाल, शुक्रिया कॉल करने का। बात यह है कि वो मैंने बताया कि 2 दिन हुए थे, स्वयं भी नहीं हुआ था, तो कमिटमेंट थी, मुझे जाना था। देखिए, मैं एक इंडिविजुअल अपनी शख्सियत के लिए, जो 500,000 लोग बैठे हैं मेरे इंतज़ार में, पैसा मैटर नहीं करता, पैसा तो हम ज़िंदगी जब तक है कमाते रहेंगे, लेकिन जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको मुझे सुनना है, तो मुझे जाना पड़ा। और मैं अंदर से कितना टूटा होऊंगा कि एक वालदा जिसका कोई नैमुल बदल ही नहीं है, जिसने 9 महीने मुझे पेट में रखा और तकलीफ़ों से मुझे पैदा किया, और फिर मेरे लिए दुआएं की, जो आज मैं इस जगह पे, इस मकाम पे बैठा हूँ, मेरे बड़े भाई या मैं कोई भी, ये माँ बाप की मोहब्बतें और दुआएं होती हैं और लोगों का प्यार होता है। तो मैंने लोगों को हंसाया, मैं अंदर से कितना ही रो रहा हूँ, टूटा हुआ हूँ। मुझे टेम्परेचर भी था 100, और मैं सोया नहीं था। दो कैसे सो सकता है एक औलाद, कैसे सो सकती जब उसकी माँ दुनिया से मेरे हाथों में गई है वो। अच्छा। बिल्कुल सही, उन्होंने यानी कि खाना बनवाया, सब हम साथ बैठ के दोपहर को खाते थे, तो वो नहाने गई हैं, नहा धो के फ्रेश आई हैं बिल्कुल, और ऐसे खाना लगा हुआ है, उनका बिस्तर ऐसे ही था, और इधर खाते थे हम सब बैठ के। वो लेटी हैं, और पता नहीं क्या हुआ कि उनको ब्रेन हैमरेज का अटैक हुआ, फिर मेरे गोदों पे चली गई। यानी कि कहते हैं कि कितने दूर है ये, और ये खाना रिस्क पड़ा हुआ है, आपके नसीब में नहीं है। वही जो नसीब पे और अल्लाह के तवक्कुल पे ये बात रखनी चाहिए। जो लोग बेहिसी में एक दूसरे के जेबें काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तकलीफ़ें दे के पैसे कमा रहे हैं, अल्लाह ने जो किस्मत में लिख दिया है वो आपको 2 पहाड़ों के बीच में मिलेगा, दुनिया के कहीं भी पहाड़ों को मिलेगा। बेशक, अगर आपके नसीब में नहीं, 2 दांतों के बीच में जो रिस्क फंसा ना, वो भी गले से नीचे। क्या बात करिए, सुभान अल्लाह। तो इस तरीके से तो मेरे हाथ में जान दी, मैंने वो कॉमेडी की। फिर उसके बाद मेरे भाई के साथ इतना बड़ा वाक़या हो, शकील भाई के साथ, अमेरिका में थे, मैंने ही कॉल की थी, स्टेज ड्रामा चल रहा था, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, और ड्रामा कर रहे हैं, अभी 15 मिनट में ड्रामा शुरू हुए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये नहीं बताऊँ यार, लेकिन बताने में ज़रूरी, बड़ा बेटा है, सबसे बड़े भाई मेरे भाई, तो मैंने बता दिया। मुझे नहीं पता था कि ड्रामा भी शुरू हुआ है कि नहीं, हो गया था, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बताया। फिर ड्रामा भी किया, 2 घंटे हंसाया लोगों को, और फिर एंड में बताया तो लोगों के आंसू निकल गए, वो खुद भी रो रहे थे, लोग भी रो रहे थे कि एक आर्टिस्ट ऐसा होता है, इस तरीके से कमिटमेंट का पक्का। तो हमारे साथ होती रहती ज़िंदगी की एक नशे व फराज है, उससे आदमी गुजरता रहता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा कि अल्लाह पे तवक्कुल तो इंसान कर लेना तो दुनिया में कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ तवक्कुल होना चाहिए कि वाकई वही करने वाला, वही सब कुछ। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ, बड़ा ज़बरदस्त। जी जी बिल्कुल। 24 मुल्कों में गया हूँ, इंग्लैंड गया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, सब कॉन्टिनेंटल, ये जो सारे मिडिल ईस्ट, यूरोप, सब घूम के आया। मैंने कहा एक दिन ना लेटा हुआ था ऐसे ही, मैंने कहा कब इंसान की जान निकल जाए पता नहीं है। सही है, इंसान के एक लम्हे का पता नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं लेटा हुआ कह रहा हूँ, या अल्लाह मुझे दुनिया की हर जगह दिखा दी, तूने अपनी सरजमीन नहीं दिखाई, काबा नहीं दिखाया, मुझे मदीना नहीं दिखाया। कसम खुदा की मैं सच बता रहा हूँ, लिटरली। बिल्कुल। और मेरे आंसू निकल रहे हैं। मैं उठा, मगरिब का टाइम था, नमाज पढ़ी, मेरा दामन गीला हो गया। मैंने कहा मैंने दुनिया देख ली, अमेरिका, कनाडा, ये दुनिया में मस्त होके आया हूँ, ये क्यों नहीं दिखाया, ये क्या चक्कर है, कब बुलावा आएगा। बुलावे से जाता ना। ये मैं उठाऊँ गीले दामन के साथ, लेटा हूँ, मोबाइल पे कुछ चीज़ देख रहा था, अचानक फ़ोन आया शकील भाई का, हेलो पासपोर्ट दे दो। मैंने बोला क्यों? कहा यूरोप जाना है, दुबई जाना है। मेरे जहन ही नहीं उधर। बोला नहीं, परसों शो है सऊदी अरब में, और गवर्नमेंट का शो है, गवर्नमेंट वालों ने बुलाया, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोलैबोरेशन होके गवर्नमेंट का एक वो कल्चरल शो था। सही है, वहाँ जाना है, परसों जाना है।
काशान हम अभी लोग आप रो रहे थे। हाँ, और ये देखें परसों जाना है, ये हमारा ऐसा होता है कि 2-2 3-3 महीने के पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, चल रहे होते हैं मामला सारे। यार हुकूमत इन्वॉल्व थी, एक दिन में वीज़ा लगा। मेरा ऐसा पासपोर्ट गया, सुबह वीज़ा आ गया और परसों हम चले गए। और फिर मदीने की गलियां थी और काबा था और दुआएं थी और रोना धोना था, सब कुछ। मैं अल्लाह को बिल्कुल करीब से देखा मैंने कि किस तरीके से उसने दुआ कबूल की। बिल्कुल अल्लाह शहर अक से करीब है, बिल्कुल। मतलब उसको पता नहीं कहाँ ढूंढते रहते हैं, कोई चीज हम मज़ारों में ढूंढते हैं, हम कहीं ढूंढते हैं, बारगाह में दिल से मांगो तो वो एक वही देने वाला है, वही देता है। वहदहू ला शरीक लहू। बस आखिरी, बस कहीं नहीं जाने की जरूरत। और आप दूसरे दिन मदीना शरीफ पहुंच गए? पहुंचा हुआ। और आप पहली दफा उस वक्त? पहली दफा गया था जिंदगी में, पहली दफा। अल्लामा साहब दूर दूर तक कुछ पता नहीं, रोते हुए मदीने की जो है फरियाद करी और मदीने वाले आका ने बुलावा दे दिया। असल बात कोई है ना, सारी बात है मंजूरी की। क्योंकि इंसान ना ताकत से जाता है, ना पैसे से जाता है, बड़े बड़े अरबपति ना किसी के रेफरेंस से जाता है। वहाँ इंसान जाता है बुलावे पे। मंजूरी की बात है सारी। मंजूरी की जब मंजूरी हो जाती है तो सारे रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। परवेज़ भाई आपका बहुत शुक्रिया हमारी अकीदत रमज़ान में आने का, बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने का, इन जैसे लोगों में बिठाने का। इनके तुफैल कुछ बरकतें हम भी समेट के जा रहे हैं। बेशक बेशक। नहीं परवेज़ भाई हमने आपसे सीखा। याद रखिएगा हमेशा। मुफ्ती साहब आप भी दुआओं में याद रखिएगा हमें, आप सब भी रखिएगा अपने पाक। इतनी ज़बरदस्त किस्म के सना ख्वाह हैं आप लोग, अल्लाह और उसके रसूल की हम्द करते हैं माशाअल्लाह। तो दुआओं में याद रखिएगा हमेशा। आपका बहुत शुक्रिया अकीदत रमज़ान के तमाम ट्रांसमिशन के कैमरे। अच्छा परवेज़ मैं आपको बता दूं कि ये SNN, क्योंकि आपको भी इल्म होगा, सच्चल टाइम अखबार जो कि 16 साल से प्रिंट मीडिया का जो है बादशाह कर रहा है। हमारे ऐड भी आते रहे ड्रामों में, ड्रामों के ऐड भी आते हैं इसमें। जी जी। तो इन सब का सच्चल वालों का और आसिम अकील साहब की काविशें हैं। अल्लाह ताला उनके ज़िंदगी में, उनके माल में, उनकी सारी चीज़ों में। और आपको सबसे अच्छी बात बताऊं, इन्होंने अपनी पहली SNN की ट्रांसमिशन का आगाज, इनका मोटिव ये था, रोक दिया था। हालांकि पहले भी ऑन एयर हो सकता था, लेकिन बोला नहीं हम करेंगे तो रमज़ान ट्रांसमिशन से करेंगे। ये मैं बता दूं आपको, इनके सारी चीज़ें ओके थी। बोला नहीं यार अब रमज़ान ट्रांसमिशन। तो हमारी भी दुआएं कि अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकतों से, इसकी बाबरकत दिनों से, इनकी कमाई में, इनके चैनल में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बिल्कुल। मुफ्ती साहब और जितने भी इतने जो इस्लाम के दाई हैं और इस्लाम की खिदमतें करने वाला, ताला इन सब की उम्र में इजाफा फरमाए सेहत के साथ, और इसी तरह दीन की खिदमत करते रहे। आप भी ऐसे पढ़ते रहें, आप भी इसी तरह माशाल्लाह आपको नए रूप में देखा, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा बोलने लगे हो। अल्लाह ताला आपके बोलने में, आपकी चीज़ों में बरकतें अता फरमाए, उसी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। और अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत दे कि जो हम ज़ुबान से कह रहे हैं ना वो दिल से भी बस वैसे हो जाए, अमल भी करें, अमल करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला, करने वाला बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया सारी टीम का, एक एक कैमरामैन का, भाईजान, पानी पिलाने वालों से लेकर मेकअप से लेकर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जितने भी थे, सबका बहुत शुक्रिया। खासतौर पे अदनान पटेल का, मैं वहीं आने वाला था, आप बीच में बोल पड़े। नहीं वो गिफ्ट रुक जाएंगे आपके ऊपर, इसीलिए तो वहीं आ रहा था। असल वजह तो असल चौक में आने वाला था, आने वाले थे, टर्न कर दिया। तो अदनान पटेल का भी बहुत शुक्रिया जी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया सर। परवेज़ भाई ये 4 सीजन परफ्यूम की तरफ से, और तोहफा देना सुन्नत है, तो ये 4 सीजन और खुशबू का तोहफा देना, वो भी रमज़ान वैसे ही रहमतों का, बरकतों का और नेमतों का महीना है। ये 4 सीजन और अबू हाशिर की तरफ से ये आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर है, ये दोनों कबूल करें आप। और अगर आपको नहीं चाहिए हो तो आप नहीं, मुझे तो राशन में चाहिए। राशन है सर, वो तो खत्म हो गया, आप लेट हो गए। नहीं बहुत ज़्यादा। अरे सर आज जो आप राशन लेके जा रहे हैं ना आखिरत का, जो आपने अच्छी अच्छी बातें करी है, देखिए सीखने का मरहला कभी ख़त्म नहीं होता, और कभी कभी कोई ऐसी बात इंसान सीख लेता है किसी ऐसे शख्स से जो अनएक्सपेक्टेड हो। और आज माशाल्लाह जो परवेज़ भाई ने बात करी है, यकीन जानिए परवेज़ भाई, अगर आपने शायद ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है कि आप मुझे, क्योंकि मैं इनके सामने बहुत छोटा था, मेरे वालिद आफ्ताब आलम के ये बहुत पुराने दोस्त हैं और इनके साथ बहुत काम किया, इनके सामने हम बच्चे थे। दोस्त नहीं है वो, मेरे उस्ताद थे, आपके अब्बा। हाँ उनका मैं भूल गया था कि अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे, सेहत दे, बहुत अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल। और उनके साथ मैंने बहुत टूर किए, सबसे पहले ज़िंदगी का टूर आपके वालिद के साथ किया इंग्लैंड का। तो अल्लाह ताला उनको इस्तकामत दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, सबको ज़िंदगी सेहत दे अच्छी।
اچھے چال چلن کے ساتھ. تھینک یو. بہت شکریہ. عدنان پٹیل صاحب کا بھی آپ نے عدنان پٹیل کو بھی اللہ تعالیٰ رائے راست پہ لے کے آئے اور وہ بھی نیک عمل کرتے ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن کبھی کبھی کھانے کا وعدہ کر کے سیلانی پہ JDC بھیج دیتے ہیں. دیکھیں پورا تو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں وہاں چیریٹی کرتے رہے تو سمجھو میری طرف سے. تو بہت شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سیگمنٹ مہمان عقیدت کا, اور امید کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں میں نے کہا تھا کہ عقیدت رمضان از ایکولز ٹو علم, تربیت اور تھوڑا سا ہنسی مذاق اور تھوڑا سا علم, تھوڑی سی تربیت. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد, اور اس کے بعد بریک کے بعد سیگمنٹ ہوگا میرا آپ کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری باتیں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے SNN پر سحری کی خوبصورت ٹرانسمیشن عقیدت رمضان.